ہمارے گاؤں میں جس لڑکے کی شادی ہوتی اس دن وہ غائب ہو جاتا۔ لوگ ڈر کے مارے شادی نہیں کر رہے تھے۔ میری بھی عمر نکلی جا رہی تھی۔ پھر شہر سے ایک لڑکا آیا، اس نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن وہ تو غائب نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن ایک اور لڑکا غائب ہو گیا۔ ایک دن میں شوہر کے ساتھ اس کے شہر والے گھر گئی تو رات کو شوہر چھت پر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ جب دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں تو ہمارا گاؤں پنجاب کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک تھا۔ ہمارے گاؤں کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے اور ہمارے گاؤں کے لوگوں کا حسن بھی بہت ہی مشہور تھا۔ دور دور سے سیاح ہمارے گاؤں گھومنے آتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہمارا گاؤں آنے والوں کو مبہوت کر دیتا تھا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ لیکن نہ جانے ہمارے گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ اچانک ہی گاؤں میں ویرانی سی چھا گئی تھی۔ شام کے وقت گاؤں میں ایسا سناٹا ہوتا کہ دل بیٹھ سا جاتا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گاؤں میں عجیب ہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کا دن آتا، وہ لڑکا اچانک ہی غائب ہو جاتا اور سارا گاؤں اسے ڈھونڈتا رہ جاتا۔ لیکن ایسا لگتا کہ جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ گاؤں کے 5 جوان لڑکے اسی طرح غائب ہو چکے تھے اور اس کے بعد سے ڈر کے مارے لوگوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنا چھوڑ دی تھی۔ گاؤں میں عجیب سی اداسی چھا گئی تھی کیونکہ ہمارے گاؤں میں شادی بیاہ پر اتنی رسومات ادا کی جاتی کہ ایک جشن کا سا سما ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب سے لوگوں نے شادیاں کرنا ترک کی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ گاؤں میں کوئی سوگ منایا جا رہا ہو۔ عجیب سا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ میری پکی سہیلی رانی کی شادی تھی اور وہ بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کی شادی اس کی پسند سے ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے تایا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، لیکن بارات آنے سے کچھ ہی دیر پہلے پتہ چلا کہ اس کے تایا کا بیٹا کسی کام سے گھر سے نکلا تھا اور پھر لوٹ کر واپس نہ آیا۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ میری سہیلی رانی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارے گاؤں والے عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو لگتا کہ گاؤں میں عصیب آ گیا ہے تو کوئی جنات کا ذکر کرتا، کوئی دلہن کو بد نصیب ٹھہراتا تو کوئی لڑکے کو برا بھلا کہتا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہ مل سکا تھا۔ لوگوں نے تو خوف کے مارے اپنی بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں بھی کافی دنوں سے گھر میں ہی تھی۔ میری اماں تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اب گھر میں رہ رہ کر میرا دل اکتانے لگا تھا۔ مجھے تو گاؤں کی کھلی فضا میں گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ میں ساری دوپہر کھیتوں میں سہیلیوں کے ساتھ گھومتی رہتی تھی، لیکن ابا نے اب مجھ پر بہت سختی کر دی تھی۔ ابا کو نہ جانے کیسے کیسے وہم ستانے لگے تھے۔ ابا نے مجھے اکیلے پاس پڑوس کی سہیلیوں کے گھر جانے تک کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں سارا دن اماں کے ساتھ گھر کے کام کرواتی رہتی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنے والا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی اور ابا میرے لیے اپنی ہی گاؤں برادری میں رشتے دیکھ رہے تھے، لیکن اب تو ڈر کے مارے گاؤں والے شادی کے نام سے ہی کترانے لگے تھے۔ ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ اگر گاؤں والے اسی طرح اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کریں گے تو گاؤں کی لڑکیوں کا کیا ہوگا۔ ابا کو سب سے زیادہ میری ہی فکر تھی، لیکن جس طرح گاؤں کے لڑکے غائب ہوئے تھے، کوئی بھی لڑکا شادی کا نام تک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک دن میرے لیے شہر سے ایک لڑکے کا رشتہ آیا تو ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اس سے پہلے بھی میرے لیے یہ رشتہ آ چکا تھا، لیکن اس وقت ابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے کسی اور برادری میں بیاہ کر نہیں دیں گے، اور شہری لڑکے سے تو میری شادی کرنے کا ابا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابا کو شہر اور شہر کے لوگ بالکل پسند نہیں تھے، لیکن اب جب کہ گاؤں کے لڑکے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے تو ابا مجھے ساری زندگی اپنی دہلیز پر بٹھا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ابا نے کچھ وقت لیا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکیں۔ میں ابا کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کا تارا تھی اور ابا مجھے لے کر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ لڑکا جس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، گاؤں کے چودھری کے بیٹے کا دوست تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے اسے گاؤں میں 2-3 دفعہ دیکھ رکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکا تھا، لیکن میرے ابا کو شہر کے لوگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ابا کا ماننا تھا کہ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ شہری لوگ بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں۔ ابا نے اماں سے مشورہ کیا تو اماں کہنے لگی کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا،
ये तो हमारी बेटी के नसीब की बात है। अगर हमारी सितारा के नसीब में खुशियाँ लिखी होंगी तो उसे शहरी बाबू से भी मिल जाएंगी, और अगर दुख लिखे होंगे तो गांव में ब्याह कर भी उसे दुख ही देखने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ करो और ज़ात बरादरी और गांव के चक्कर से बाहर निकल आओ। अम्मा की बात सुनकर अब्बा कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर मुझे देखकर पूछने लगा कि सितारा बेटी, तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैंने डरते डरते अब्बा से कहा कि अब्बा, अगर ये लड़का भी शादी के दिन गायब हो गया तो हम क्या करेंगे? मेरी बात सुनकर अब्बा भी फिक्र में डूब गए और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ही इस लड़के से बात कर लेता हूँ और उसे हमारे गांव का मसला बता देता हूँ, फिर आगे से वो जो फैसला करना चाहे उसकी मर्जी होगी। अब्बा ने अगले ही दिन उस लड़के को घर बुलाया। उसका नाम बाबर था। अब्बा ने जब बाबर को बताया कि किस तरह शादी वाले दिन गांव के लड़के गायब होने लगे हैं, तो अब्बा की बात सुनकर बाबर हंसते हुए कहने लगा, हम शहर वाले हैं और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। हो सकता है कि उन लड़कों को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर किया गया हो, इसलिए वो खुद ही चले गए हों, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो सीधी सादी, साफ दिल की और मुखलिस हो। इसीलिए मैंने आपसे सितारा के लिए रिश्ता मांग लिया। आपको अच्छे से मालूम है कि गांव के चौधरी का बेटा मेरा दोस्त है, इसीलिए अगर आप मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो अपने छोटे चौधरी से पूछ सकते हैं। बाबर की बात सुनकर अब्बा शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है। बाबर कहने लगा कि फिर शादी में देर किस बात की है? मैं शादी के बाद भी कुछ अरसा गांव में ही रहूंगा, क्योंकि मैं गांव की कुछ ज़मीनें खरीद रहा हूँ। कभी कभी मेरा शहर आना जाना भी लगा रहेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि सितारा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटे चौधरी ने भी अपने दोस्त बाबर की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, इसीलिए अब्बा ने मुतमईन होकर मेरा रिश्ता बाबर के साथ तय कर दिया था और 1 हफ्ते बाद मेरी और बाबर की शादी थी। जब गांव में ये खबर फैली तो गांव के लोग हैरान हो गए, क्योंकि गांव में अपनी बरादरी से बाहर शादी करना मुनासिब नहीं समझा जाता था। लेकिन अब्बा ने सबको 2 टोक जवाब दिया कि अगर तुम लोग अपने बेटों का रिश्ता नहीं दोगे तो क्या मैं सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपनी दहलीज पर बिठाकर बूढ़ा कर दूंगा। अब्बा की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटे की शादी तय करता। अलबत्ता गांव वाले चहमगोइयों में ज़रूर मसरूफ़ थे कि अब देखते हैं कि सितारा की शादी वाले दिन दुल्हा के साथ क्या होता है। शादी की छोटी मोटी तैयारियों में 1 हफ्ता चुटकी बजाते ही गुजर गया और वो दिन आ गया जब मैं बाबर के लिए पूरी तरह तैयार होकर दुल्हन बन गई। मैं पहले ही बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो मेरे हुस्न को मज़ीद 4 चांद लग गए थे। मेरी सहेलियां तो मुझे देखकर कुर्बान हुई जा रही थीं। साथ साथ मेरी किस्मत की भी तारीफ़ करती कि मुझे गांव में रहते हुए भी एक पढ़े लिखे शहरी लड़के का साथ नसीब हो गया था। गांव के एक तरफ बाबर ने एक छोटा सा घर किराए पर ले रखा था। वो गांव की कुछ ज़मीनें खरीद कर वहाँ स्कूल तामीर करवाना चाहता था, ताकि लड़कियां भी लड़कों के साथ साथ तालीम हासिल कर सकें। दुल्हन बनी मैं बहुत ही घबराहट का शिकार थी। मेरे दिल में बार बार एक ही खदशा सर उठा रहा था कि अगर बाबर भी शादी वाले दिन गायब हो गए तो क्या होगा। लेकिन मेरी बारात खैरियत के साथ आ गई थी। हम दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया और निकाह के बाद बाबर मेरी आंखों के सामने थे। मैं जो बहुत दिनों से इस खौफ में जी रही थी कि शादी वाले दिन न जाने बाबर आएंगे भी या नहीं, वो खदशात अब दूर हो गए थे। बाबर ने शादी की रात ही मुझे बताया था कि उसे गांव के रस्म व रवाज कुछ खास पसंद नहीं है और वो चाहता है कि गांव की लड़कियां भी तालीम हासिल करके अपने हक के लिए बात करें। बाबर की सोच ने मुझे बहुत ही खुश कर दिया था। शादी की रात बाबर ने मेरा हाथ थामकर मुझसे बहुत सारे वादे किए थे और मैंने बाबर के सारे वादों को अपने दिल में सजा लिया था। बाबर बहुत ही अच्छे हमसफ़र साबित हुए थे। बाबर ने मुझे पलकों पर बिठा कर रखा और किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस ना होने दी। मैं बाबर के साथ उसके गांव वाले घर में ही रह रही थी और बाबर स्कूल की तामीर के सिलसिले में मसरूफ़ था। मेरा जब दिल चाहता मैं अपने माँ बाप के घर चली आती। बाबर की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं थी। मेरी शादी को कामयाब देखते हुए गांव वालों ने दोबारा अपने बेटों की शादी करने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद गांव के एक और लड़के की शादी तय हुई। लेकिन शादी के दिन वो भी गायब हो गया।
इस बात ने तो गांव वालों के साथ साथ मुझे भी परेशान कर दिया था। जब से मुझे ये खबर मिली थी, मुझे बाबर की फिक्र सताने लगी थी। और जब यही बात मैंने बाबर से कही तो वो हंसकर कहने लगे, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, मैं अभी तक तुम्हारी नज़रों के सामने हूँ, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है। गांव के लोगों को इस बात पर यकीन आ गया था कि सिर्फ गांव के लड़के ही शादी वाले दिन गायब होने लगे हैं, और ये यकीनन किसी आसेब का नतीजा है, या गाँव वालों को किसी की बद्दुआ लग गई है। अब तक गाँव से 6-7 लड़के गायब हो चुके थे और गाँव में मज़ीद खौफ फैल गया था। लोग गांव के चौधरी से उस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन बड़े चौधरी काफ़ी अरसे से इलाज के लिए शहर गए हुए थे और छोटे चौधरी को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मेरा अब्बा बहुत खुश था कि उसने गांव वालों के खिलाफ जाकर मेरी शादी कर दी और मेरा घर बस गया, क्योंकि अब गांव की लड़कियों के रिश्ते होना बहुत ही मुश्किल था। हमारी शादी को 20 दिन गुजरे थे कि जब बाबर ने मुझे बताया कि उन्हें स्कूल की कुछ कागजी कार्रवाई के सिलसिले में वापस शहर जाना होगा और वो 2 दिन बाद शहर से लौट आएंगे। बाबर चाहते थे कि मैं अपने माँ बाप के घर जाकर रुक जाऊं, लेकिन मैंने बाबर से कहा कि मैं शहर देखना चाहती हूँ। मैं आज तक कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं बाबर के साथ शहर देख आऊं। बाबर कहने लगे, तुम शहर जाकर क्या करोगी? मैं वहाँ कामों में मसरूफ़ रहूँगा और बस 2 ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ। मुझे सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके वापस लौट कर आना है। बाबर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बाबर से मुंह फेर कर बैठ गई। इतने दिनों में मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि बाबर को मेरी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और ना ही वो मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, और मैं अब इस बात का फ़ायदा उठा रही थी। थोड़ी देर तो बाबर मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब थक गए तो कहने लगे, ठीक है मेरे साथ चलो, लेकिन वहाँ जाकर शहर घूमने की फरमाइश ना करना। फ़िलहाल मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बाबर की बात सुनते ही मैं खुशी से चहक उठी और जल्दी से अपना सामान बांध लिया। बाबर मेरे चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे थे। अगली ही सुबह हम दोनों शहर के लिए निकल गए। मेरे लिए तो शहर की दुनिया बिल्कुल ही अनोखी और अजीब थी। शहर में दाखिल होते ही मैं हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी। बाबर मुझे अपने शहर वाले घर ले आए थे। तवील सफ़र की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। बाबर ने मुझे सोने के लिए कहा और ख़ुद कामों में लग गए। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन इस नरम नरम से गद्दे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो चारपाई की आदत थी, लेकिन यहाँ चारपाई नहीं थी। बाबर काफ़ी देर से कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे थे। इसके बाद अचानक ही वो कमरे से उठकर बाहर निकल गए। मैं जो आंखें बंद किए लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, बाबर को बाहर जाता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। ये मेरे लिए नई जगह थी और मुझे यहाँ नींद आना बहुत ही मुश्किल था। शायद बाबर ये समझ रहे थे कि मैं सो चुकी हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़कर बाहर चले गए थे। मैं बाबर के पीछे पीछे ही कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि बाबर सीढ़ियाँ चढ़कर छत की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ी। उस घर की छत बहुत बड़ी थी और बाबर छत पर बने एक छोटे से कमरे में चले गए थे। मैंने भी उनके पीछे जाकर जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ तो मेरे गांव के लड़के मौजूद थे जो शादी के दिन गायब हो गए थे, और वो सब बंधे हुए थे। दरवाजे की आवाज़ पर बाबर ने जैसे ही पलट कर देखा तो मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैं हैरान परेशान कभी चेहरे पर नकाब लगाए भेस बदले खड़े बाबर को देखती और कभी उन लड़कों को जो मेरे ही गांव के थे और यहाँ बंधे पड़े थे। उन सब के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो सभी मुझे पहचान गए थे। बाबर मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे कमरे से बाहर ले आए। मैं इतने दिनों में बाबर को पहली दफा गुस्से में देख रही थी। वो मुझ पर शदीद गुस्सा थे और कह रहे थे कि तुमसे किसने कहा था कि मेरे पीछे आओ? मैंने तुम्हें कहा भी था कि सो जाओ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। गांव के सब लड़कों के गायब होने के पीछे बाबर का हाथ था। ये सोचकर ही मैं कांप उठी थी। मैंने रोते हुए बाबर से कहा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने इन्हें क्यों बांध रखा है और अपने चेहरे को नकाब से क्यों छुपाया हुआ है। बाबर कहने लगे कि अब जब तुम सब कुछ देख चुकी हो तो जान लो कि इन सबको मैंने ही गांव से गायब करवाया है और आज मैंने आज़ाद करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुमने सब किए कराए पर पानी फेर दिया और अपना चेहरा इन्हें दिखा दिया। अब मैं चाहकर भी इन्हें आज़ाद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बाबर से कहा, ये तो बताइए कि आपने इन्हें यहाँ बंद क्यों कर रखा है।
बाबर कहने लगे कि आज से 3 महीने पहले मैंने तुम्हें पहली दफ़ा गांव में देखा था और उसी दिन मैं तुम्हारा आशिक हो गया था। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जिसे मैं पाने की तमन्ना रखता था। मैंने अपने माँ बाप के ज़रिए तुम्हारे बाबा के पास अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन तुम्हारे बाबा ने साफ मना कर दिया था। मैं इनके गांव बरादरी का नहीं हूँ, इसीलिए वो तुम्हारा रिश्ता मुझसे नहीं कर सकते थे। मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बड़ी मुश्किल से मना कर तुम्हारे घर भेजा था, क्योंकि वो लोग मेरी शादी एक गांव की अनपढ़ लड़की से नहीं करना चाहते थे। और जब तुम्हारे बाप ने इनकार किया तो मेरे माँ बाप ये कहकर साफ चले गए कि अब वो दोबारा कभी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। मेरा दोस्त जो गांव का छोटा वडेरा है, उसने मुझे कहा कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन कोई भी गांव वाला अपनी बरादरी और गांव से बाहर अपनी बेटी को कभी रुखसत नहीं करता। मैंने कुछ दिन अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल ना माना। मैं किसी भी तरह अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था। मुझ पर एक जुनून सवार था। कुछ दिन गांव में रहने पर पता चला कि गांव वाले बहुत ही सीधे साधे हैं और अजीबोगरीब किस्म की बातों पर फ़ौरन ही यकीन कर लेते हैं। इसीलिए मैंने सोच समझकर एक ऐसे लड़के को अगवा कर लिया जिसकी शादी का दिन था और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर खामोशी से शहर लाकर अपने घर में बंद कर दिया। मेरा इरादा किसी भी लड़के को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी इस हरकत से गांव वाले डर जाएंगे और ऐसा ही हुआ। गांव में ये बात गर्दिश करने लगी कि जिस भी लड़के की शादी होती है वो गायब हो जाता है। इसी तरह शादियों का सिलसिला रुक गया। जब मेरे माँ बाप तुम्हारे घर रिश्ता लाए थे तो तुम्हारे बाबा ने बताया था कि वो तुम्हारी जल्दी शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे यकीन था कि मुझे ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ लड़कों के अगवा के बाद गांव वालों ने अपने बेटों की शादी ही करना छोड़ दी और मैंने मौका देकर तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया। छोटे चौधरी को मेरी हकीकत मालूम थी और वो भी मेरे साथ मुलव्वस था। वो मेरा दोस्त था और जानता था कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका हूँ। मैं गांव में लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल तामीर करवाने आया था और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था। लेकिन अचानक ही तुम मेरी ज़िंदगी में चली आई और मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया। जब गांव बरादरी वालों ने तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेजा तो तुम्हारे अब्बा ने खुशी खुशी मुझसे तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया, और यही मैं चाहता था। हमारी शादी के बाद होने वाली एक और शादी पर मैंने जानबूझकर लड़के को गायब किया था ताकि किसी का भी शक मुझ पर ना जाए और सब यही समझे कि गांव के लड़के गायब हो रहे हैं। अब जबकि तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी थी और मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन तमाम लड़कों को आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन तुम जिद करके मेरे साथ शहर आ गई। इसीलिए मैंने तुम्हारे सोने का इंतज़ार किया और फिर मैं तुम्हें सोता हुआ समझकर छत पर इन्हें आज़ाद करने की नीयत से आ गया। मैंने सोचा था कि अपना चेहरा दिखाए बगैर और कुछ कहे बगैर भी मैं इन लड़कों को वापस गांव भिजवा दूंगा, लेकिन तुमने दरमियान में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये सब लड़के तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं और ये जान गए हैं कि इनके अगवा के पीछे हमारा हाथ है। इसीलिए अब मैं इन्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा। बाबर की बातों ने तो मुझे हैरान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शख्स मेरी मोहब्बत में इतना आगे भी जा सकता है कि वो गांव से लड़कों को अगवा करके शहर भिजवा देगा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो मुझे हासिल कर सके। मैंने बाबर के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और बाबर से कहा कि मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और अब इन लड़कों को आज़ाद कर दीजिए क्योंकि इनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और ये सब बेकसूर हैं। बाबर कहने लगे कि अगर मैं इन्हें आज़ाद कर दूंगा तो ये गांव जाते ही मेरा सच बोल देंगे। मैंने बाबर से कहा कि मैं इन लोगों से बात कर लूंगी, लेकिन आप अब इन्हें आज़ाद कर दीजिए। बाबर ने कहा कि ठीक है, अगर ये लोग आसानी से मान जाते हैं तो मैं इन्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं वापस इसी कमरे में आ गई और इन सब के हाथ पांव खोल दिए। मैंने बाबर को सख्ती से कह दिया था कि अब वो नकाब के बगैर ही कमरे में आए, इसीलिए बाबर नकाब उतार कर अपना हुलिया थोड़ा सा बदल कर मेरे पीछे चले आए थे। मैंने गांव के लड़कों को कहा कि मेरे शौहर ने अपने ज़राए के ज़रिए मालूम करवा लिया था कि उन लोगों को अगवा करके यहाँ रखा गया है ताकि आगे स्मगल किया जा सके, और मैं और मेरा शौहर उन सबको आज़ाद करवाने आए हैं। हमें छोटे चौधरी ने उनकी मदद के लिए भेजा है। और ये कहकर मैंने उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया था और अपने ड्राइवर के ज़रिए उन्हें गाँव भी भिजवा दिया था। वो सब भी गांव के भोले भाले ही लोग थे, इसीलिए मेरी और बाबर की बातों में आ गए थे। बाबर ने जो कुछ किया था वो बहुत ही गलत था, लेकिन बाबर अपनी गलती सुधारना चाहते थे। छोटे चौधरी ने गांव में ऐलान करवा दिया था कि जो गिरोह लड़कों को अगवा कर रहा था वो पकड़ा गया है और अब गांव में बाआसानी शादियां हो सकती हैं। एक दफ़ा फिर गांव में धूमधाम से शादियां होने लगी थी
اور جشن کا سا سما ہو گیا تھا۔ میں نے اور بابر نے مل کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول بھی شروع کر دیا تھا اور اب گاؤں کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکتی تھیں۔ بابر ایک اچھے انسان تھے، لیکن محبت نے ان سے کچھ غلط کام کروا دیے تھے، جس کے لیے میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান দিনে রাতে তোরে আমি স্বপ্নে দেখি